Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you on market-related queries, but do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23310481 and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 23314444, 23310481 और 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें। श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं बाजार विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। वार्म वेलकम सिद्धार्थ। गुड इवनिंग। नमस्ते प्राची। चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए जानते हैं सुर्खियां। Benchmark domestic indices declined for the second consecutive week. Sensex and Nifty slips around 0.5%. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. And global crude oil prices extend their rising streak this week. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.5% फिसले। अमेरिका ने $20 अरब मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता के विफल होने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक लगातार दूसरे सप्ताह फिसले। बढ़ते वैश्विक तनाव, कच्चे तेल के बढ़ते दाम और वैश्विक बॉन्ड बाजारों में अनिश्चितता के कारण ये गिरावट दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 468 अंक यानी 0.6% फिसलकर 77,541 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.5% लुढ़ककर 24,252 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांकों की अगर बात करें तो मिड कैप 100 में मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में सप्ताह के दौरान 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्रीय स्तर पर निफ्टी आईटी और एफएमसीजी में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.3% की गिरावट आई। इसके विपरीत निफ्टी मेटल और रियल्टी में लगभग 2% की वृद्धि हुई। निफ्टी मीडिया में 1.4% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 28 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95 रुपए और 71 पैसे पर स्थिर हुआ। So Siddharth, the benchmark domestic equity indices for the second consecutive week declined due to the reasons mentioned by Prachi also, renewed global tensions, elevated crude oil prices and uncertainty in global bond markets. Now that we're getting into the third week, these will continue to persist
and we will continue to have the weighed down investor sentiment going forward. See, Rajesh, It seems so. Yeah, so as you rightly said, it seems so. Yes, because we don't see any dilution as far as the global tension is concerned, whether basically the most important being the war, tensions, the war between Iran and US and Iran. So we haven't seen any letdown there, though the war is not there, but there is obviously we're looking for a peace deal. So obviously, so that the Strait of Hormuz, which is almost the 30 to 40% of the oil supplies to the world come through that Strait of Hormuz, so which is still almost closed. And obviously uncertainty is also, I would say, is now a certainty. In last 3-4 months we have seen we've seen so many attempts, and there were also attempts and peace deals actually signed also, but obviously nothing sustaining, I would say. And the same as you said about the global bond markets, yes, and the most important being the US, which obviously there were expectations of inflation, interest rate hike, and that led, there was also a bond, their 10-year long tenor bonds also, the yields were very high. And obviously that is why the US, I would say the Treasury Secretary decided, the US government decided to buy back long tenor bonds of a large size, and that led to the cooling of the yields. But yes, still that also hasn't sustained, because there is huge debt, obviously, which is now. So in such a scenario, Siddharth, what should investor be doing? What should one do? See, we obviously, I would say. Let's look at the opportunities. There are opportunities. Yeah. So Rajesh, coming back, because your question is for the investors in the Indian market. Right. Obviously, the impact that the Indian market is also obviously is getting impacted is because of a lot of global reasons, not purely domestic. Nothing domestic, I would say, except the monsoons, which have been poor, or I would say they're not widely properly distributed rainfalls, and that is why we are seeing some impact on sowing, and also that is why we are seeing elevated food prices. And especially we've been seeing in last few days, there have been news about certain specific items of consumption, which prices have gone up. But yes, government of the day, we have huge buffers, and we are also taking steps to ensure that those prices are contained. So coming back to your basic question, what should the investor do? I would say the investor should obviously, I think one should look for opportunities, because macroeconomic fundamentals of the Indian economy are completely intact. Inflation is still within the range of RBI's stated goals, just crossed that level, and it is within, for the entire year also, it is likely to remain in that range. And in fact, for the GDP for this year, RBI in the last monetary policy has raised the estimate to 6.7%. So, and if you look at the GST collections, the income tax, the direct tax collections, or the policy of the government to push manufacturing, and to also the policy measures to take policy, which is leading to investments, and especially foreign investment into India. So I don't see anything for the investor to worry, but yes, one has to look at opportunities, and also if you're investing now, so you should keep in mind that yes, the returns, you may not get immediate returns, and we always say that you have to have a medium to long term So what horizon. I hear you say, Siddharth, is that the market will remain vulnerable, and this is primarily because of the expensive crude. A weaker rupee and higher US yields, which you mentioned, can simultaneously affect inflation, corporate margins, interest rates, and also foreign portfolio flows. See, but if you look at, obviously these are things which could pan out in coming days. But if we look at the estimates given by the central bank in its last monetary policy, they do not see inflation getting generalized still. They have still maintained their neutral stance as far as interest rate is concerned. So, and they expect that they will be able to contain inflation, and they do not see a reason to hike interest rates now, at least for the Indian economy, and they do not see that danger of inflation cutting across or impacting on the core inflation also. So I think it would be early to assume something like that, until unless if the crude oil prices sustain at these levels.
levels. So that needs to be seen, and I would also say to counter that argument that India, when the war started, the US-Iran war, we also took a lot of steps as far as to kind secure of our energy supplies. We have increased the number of sourcing from where the country is about 19, now we've almost doubled. We've around 40, plus we are also spreading our energy base to a lot of renewables. So I think all that, I do not see too much of there will be some impact. Obviously rains are also having an impact, and there will be sentiment also getting negative on certain, but we have good buffers, so I do not see immediately any concern. श्रोताओं, और भी खबरों की विवेचना करेंगे। हमारे समक्ष सिद्धार्थ सिंह मौजूद हैं, और अगर आपके भी दिल में कोई सवाल हो तो आप जरूर हमें कॉल करें, कॉल मिलाएं। और ये नंबर्स हैं 23314444, 23310481 और 23717106। आगे और बात करेंगे आपसे सिद्धार्थ, मगर उससे पहले आइए जोड़ते हैं अपने पहले कॉलर को कार्यक्रम में। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे थे कृपा शंकर जी, मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले हम एक सवाल मेरे मन में है सिद्धार्थ की। आपने जैसा कि बताया कि रेजिलियंस की जो बात है, मुझे लगता है कि एक मैच्योर खिलाड़ी की जो पहचान है वो ये है कि वो पिच पर कैसे टिके रहते हैं। ये नहीं कि वो कितने छक्के मार रहे हैं और एकदम जो है वो अलंकृत कर दिया है पूरे माहौल को। बहरहाल हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का डेटा आया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा आया है। अगर हम Q1 के रिजल्ट्स के लिहाज से देखें तो भी हमने अच्छा एक प्रदर्शन जो है हमारे इकोनॉमी का, तो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है वो, या यूं कहें कि हमारा जो बही खाता है उसमें अगर लाल लगे हैं तो हरे के भी निशान हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा प्राची आपने। जैसे जो आपने Q1 की, जो हम अप्रैल से जून की अगर कॉर्पोरेट जगत की हम अर्निंग्स या जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी मतलब बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। और अगर आप, और ये ऐसे समय पे अप्रैल जून वो समय है जब हमने पूरा जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वो शुरू हो गई थी तकरीबन फरवरी के लास्ट में, तो वो अप्रैल जून पहला क्वार्टर पूरा जो है वो उसी में निकला है, जब दोनों देशों के बीच में और पूरी दुनिया में जो है इतनी उथल पुथल और अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली, क्योंकि एनर्जी जो क्रूड ऑयल है वो एक बेस वो है, रॉ मटेरियल है फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे तो किसी भी तरह का, तो वो अगर इफेक्ट होता है, और वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम 90% उसे आयात करते हैं, और उसमें से भी तकरीबन काफी बड़ा आयात हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही आता था। तो आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए, और उसके साथ साथ हमको लगता है जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है। जो इन्फ्लेशन के लेवल्स हैं या जो महंगाई दर है वो अभी भी, जब मैं कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा कोर इन्फ्लेशन जो ट्रैक करता है, तो उसमें अभी कहीं ना कहीं उस तरह की चिंता या जो सेकेंड राउंड इफेक्ट हम कहें या कंपनीज पास ऑन कर रही हूं प्राइसेस, ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। जी, दिल्ली से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं कृपा शंकर जी। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि जैसे सर तो विशेषज्ञ हैं, तो ये लोग अपने ऑफिस के कहाँ हैं जहाँ से हम जाके सलाह ले सकें। और सवाल मेरा ये है कि जैसे कि मैं टोटल मेरा अमाउंट जो है FD में लगा हुआ है लगभग 40 लाख, ये अक्टूबर में मैच्योर हो जाएगी, सितंबर लास्ट में। तो ये बताइए, कुछ गोल्ड भी है, तो ये अब मैं कैसे, कहाँ मैं इसको इन्वेस्ट करूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में नयापन है। तो कृपा शंकर जी, आपकी मैं एज जान सकता हूँ, आपकी उम्र मेरी एज तो लगभग सीनियर हो गई है। बच्चों के लिए, बच्चे जो मेरे 26-28 के हैं, तो उनके लिए आगे क्या रहेगा? नहीं, कृपा शंकर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, मैं तो एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा कोई इस तरह का ऑफिस तो नहीं है, मेरा बेसिकली जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, और मैं जो अर्थव्यवस्था करीब 25-26 साल से ट्रैक करता हूँ, इसलिए मेरी जो भी इस पे नॉलेज है वो मेरे काम कर करके जो भी मैंने सीखा है।
तो पहला तो सवाल आपका, उसका जवाब ये है। और मार्केट मंत्र में आप आते हैं हाँ, और सभी सवालों के जवाब देते जी हैं। तो वो है। दूसरा, जहां तक आपने जो सवाल पूछा कि आपको, आपके लिए तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपने खुद ही कह दिया कि आप सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल उनको अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे लगता है 25-26 के हो गए हैं तो अब तक शुरू कर देना चाहिए था। मतलब मुझे लगता है एक राइट एज है, जैसे ही आप मेच्योर होते हैं 18-19 साल में ही म्यूचुअल फंड में आ जाएं। अगर उन्होंने पीपीएफ अकाउंट आपने नहीं खोला है तो आप वो खोल सकते हैं, क्योंकि वो आज भी सबसे बढ़िया निवेश है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पैसा जब तक निवेशित है तब तक टैक्स फ्री है और आपको जब मिलता है तब भी टैक्स फ्री रहता है। तो पीपीएफ खोलें, म्यूचुअल फंड खोलें और मार्केट बेस्ड, मतलब ज्यादा से ज्यादा इक्विटीज, मतलब जब स्टॉक मार्केट जो आधारित म्यूचुअल फंड्स हो उन पे ज्यादा लगाएं। आपने एफडी कर रखी है तो आप अपने जरूरतों के हिसाब से अपना पैसे को सुरक्षित एफडी में ही रखें। आपको इस उम्र के इस पड़ाव पे तो मार्केट्स में लगाने की सलाह नहीं। से बेटर इनको अर्न करना है। नहीं, इन्फ्लेशन से भी राजेश, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनको इस वक्त पे डेट मार्केट की भी सलाह इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि एफडी में एक सबसे बड़ा फायदा इस समय ये होता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए तुरंत मिल जाता है, डेट में भी मिल जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस समय के जो डेट फ्लोज इनको उस तरह के डेट में भी उस इन्फ्लेशन को ये बीट कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन अभी इंडिया में कोई बहुत ज्यादा इस समय नहीं है, थोड़ा सा इस समय बढ़ा है मीडियम टर्म में, बट मुझे लगता है इनको चूंकि सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन होने का भी कुछ फायदा मिल रहा होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से हमारे साथ अरिजीत चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम एंड द स्पेशलिस्ट। सर, आई जस्ट वांटेड टू नो वन थिंग, दैट इज मेरे दादाजी ने कुछ शेयर्स छोड़े थे मेरे नाम पे, तो अभी उस शेयर्स को क्लेम करने के लिए पहले तक के सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लगता था, तो मैंने बीच में सुना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको हटा दिया क्योंकि काफी लोग वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे। तो आज भी क्या वो सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लागू है? नहीं अरिजीत जी, देखिए सवाल आपने जो पूछा है ये कई बार बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जो आपने बात बोली कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आप अपने फादर के या मदर के जो भी आप जिनके बिहाफ पे जो आपने बोला आपके फादर ने जो कुछ शेयर्स खरीदे थे आप उनको क्लेम करना चाहते हैं, तो अगर आप वो, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कोई, हाँ ये जरूर किया होगा कि उसको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई किया होगा कि किस तरह से आप स्टैब्लिश करें कि आप सक्सेसर हैं अपने पिताजी के। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट तो केवल ये स्टैब्लिश करता है कि उनके कितने जो है सक्सेसर्स हैं। वो शायद उनकी, आपकी मदर भी हो सकती है, उनकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके कोई और भाई बहन है फैमिली में, लेकिन हो सकता है आपके फादर ने अगर कोई विल छोड़ी हो या कोई अपनी उन्होंने इच्छा कहीं रिटन में व्यक्त की हो कि कैसे किसको ये शेयर्स मिलेंगे। लेकिन ये तो जरूर तय है कि आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आप ही उनके राइटफुल सक्सेसर हैं और आप ही को ये क्यों आप ही को दिया जाए। Subhash from Faridabad joins us now. Subhash, a warm welcome. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर, अब मुझे 1-1.5 साल से नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो अभी फिर 2026 में भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी चल रहा है, तो क्या मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए सर या कुछ डिसकंटिन्यू कर दें? 2-3 म्यूचुअल फंड हैं जिसमें मेरा एसआईपी चल रहा है। नहीं सुभाष जी, एक तो ये है कि कल का जो मार्केट मंत्र प्रोग्राम होगा उसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेशली डिस्कशन केवल म्यूचुअल फंड पे होता है, आधारित होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सवाल का फिर भी इतना जवाब जरूर दूंगा कि अगर नेगेटिव रिटर्न आ रहा है तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का यही एक फंडामेंटल ये है कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, तो बिल्कुल उसको करते रहें। और आपको जरूर जब आप एक थोड़ी अवधि के बाद आप देखेंगे 2-3 साल बाद कि आपको जो ये रिटर्न्स हैं, क्योंकि इस समय जब आप रिटर्न जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मार्केट्स अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं उसी पैसे में, और वो जब मार्केट चढ़ेगी तो वो यूनिट्स का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, तो आपको फायदा जरूर होगा। तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करते रहें। Moving on, the United States has imposed 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products. The tariffs came into effect early today. Canada immediately said it would retaliate after failure of last-minute talks to ease tensions between the two historic allies.
The new U.S. tariffs will affect about 5% of Canada's annual exports to the United States. The products include hockey sticks and tongue depressors. Canadian Prime Minister Mark Carney said Canada would match the tariffs dollar for dollar. Mr. Carney blamed Washington for the failure of the talks and said the last-minute changes in the U.S. proposal were unfair and uneconomic. The last line is extremely important, that last-minute changes were very unfair and uneconomic. How safe would our deal be with the United States? Last-minute changes? Rajesh, I think we've had a fairly very detailed discussions, and I think now behind the curtains, the last-minute threadbare details are being minute details are being worked out. I'm sure Canada also had the last. But I think, with Canada, if you go back, Rajesh, I think there has been some problem with Canada, and last time also when US imposed tariffs on them, Canada retaliated with the. So we are quite hopeful in our case. Yeah, in our case, obviously we've come down to 10% now. So, and I don't see, and we are very large partners. Still, we continue to be one of the biggest trading partners. US continues to be our biggest trading partner, and our exports to US haven't come down. So we continue to export to US. We are the largest exporters to US. So I don't see that risk with Mr. Trump. But though, yes, he is unpredictable. Notwithstanding, having said all that, yes, still the unpredictability factor with Mr. Trump always exists, and the example before right before us. Yes. सिद्धार्थ, और भी खबरें हैं हमारे पास जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले आइए भोपाल से जोड़ें शंकर को। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, सिद्धार्थ जी को नमस्ते। सर, ये जीडीपी रेशो यूएस का डेट टू जीडीपी करीब 123%, 126% के आसपास है। जापान का वो ऑलमोस्ट डबल है, जिसकी वजह से वो काफी जबरदस्त रिसेशन में या स्टेग्नेशन में गए थे। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी स्टेग्नेशन में जाने की संभावना है, उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक और इसी से संबंधित सवाल है, यूएस में इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ेंगे नहीं, घटने की उम्मीद है, ऐसा है तो हमारे यहाँ उनकी अगर यील्ड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो पैसा फ्लो इंडिया में बढ़ेगा क्या? सो दैट वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर कैन रिमेन इन्वेस्टेड, एंड बिकॉज आवर सेविंग्स इज ऑल इन दैट, आवर पेंशन, आवर फ्यूचर इज लिंक्ड विद आवर म्यूचुअल फंड। सो हाउ इज आवर फ्यूचर इन म्यूचुअल फंड फॉर इन इंडियन इक्विटी मार्केट? थैंक यू। नहीं शंकर जी, आपने काफी अहम चीजें और बहुत जरूरी चीजें उठाई। एक तो मुझे नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए यूएस के डेट को लेके, क्योंकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर वहां महंगाई बढ़ती है तो वहां अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमारे लिए खराब है, और अगर वहां इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, जैसा आपने बोला, जो उन्होंने अभी बायबैक प्रोग्राम अनाउंस किया, तो उसके बाद जो है कुछ यील्ड्स वहां घटी भी थी, लेकिन अभी वो कितना सस्टेन करती है वो देखने वाली बात है। हाँ, अगर अमेरिकन इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है तो बिल्कुल हमारे ऊपर असर होगा, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है मार्केट है अमेरिका, साथ साथ हमारी आईटी कंपनीज बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका में जो है काम करती हैं, तो उन पे जरूर उसका इफेक्ट होगा। तो और जहां तक आपका सवाल कि अगर वहां यील्ड कम होती है, तो बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि हो सकता है वहां से इन्वेस्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं डेट मार्केट में तो बहुत बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। और देखिए शंकर जी, एक बात और आपको मैं बोलूंगा, अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये आप हमेशा एक भरोसा मान के चलिए कि आपकी अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की आज भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तकरीबन 7%। इस साल भी हमारा एस्टिमेट है 6.7 आरबीआई ने बोला है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी अपने निवेश को लेके कोई चिंता करनी चाहिए। हमारे फंडामेंटल्स हों, चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब सॉलिड हैं और कोई भी चिंता की बात नहीं। एक्सपोर्ट्स हों, आप देखिए इस चुनौतीपूर्ण टाइम में भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो है, जब ये जो अनसर्टेनिटी दुनिया में आई है, और ये अनसर्टेनिटी तकरीबन 2 साल से, टैरिफ हो चाहे चीन को लेके हो, तो हमने एफटीएज वगैरह भी किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हम कर रहे हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारे एक्सपोर्टर्स इन सब चीजों से बचे रहें। दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। अभिनंदन करते हम जरूर अगर योगेश जी के साथ संपर्क जो है वो बरकरार रहता, मगर शायद अभी हमारा संपर्क टूट गया है। आइए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बताया कि उसकी विशेष अमरीकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 21 अगस्त 2026 तक 72 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है। कुल प्रवाह में से विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा का हिस्सा सबसे अधिक यानी 65.4 अरब अमरीकी डॉलर था। वहीं विदेशी मुद्रा उधार से लगभग 5 अरब अमरीकी डॉलर और बाहरी वाणिज्यिक उधार से लगभग 2.5 अरब अमरीकी डॉलर का योगदान रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 8 जून को अनिवासी जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार में आने वाले विदेशी मुद्रा प्रवाह को कवर करने वाली विशेष यूएसडी INR विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपए की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लाई गई ये स्वैप सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इस सुविधा को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण इसे 1 महीने पहले ही बंद कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अपेक्षित मात्रा में विदेशी मुद्रा का प्रवाह हुआ। यह योजना अब विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा के लिए 31 अगस्त 2026 तक खुली है, जबकि बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा उधार के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। सिद्धार्थ, आरबीआई का लक्ष्य 80 से 90 बिलियन $US एकत्र करने का था। इस पर कितना इसमें बहुत उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। रुपए की स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये कितना, मैं अगर आपसे संक्षिप्त में पूछना चाहूं तो कितना योगदान इसने दिया है? नहीं प्राची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अभी देखेंगे आज 21 अगस्त तक की ये जो फिगर्स जो दी हैं उसी में $72 बिलियन आ चुका है और 80-90 का टारगेट था। लेकिन अब मुझे लगता है जो आरबीआई ने इसको प्री मेच्योरली क्लोज किया है 1 महीना पहले, मुझे लगता है जो उनका एम था वो पूरा हो गया है। अब रुपए भी स्थिर है, हमारा जो मुद्रा भंडार है वो भी, उसमें भी आप देखेंगे वो 700 बिलियन के ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लगा कि अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। Global crude oil prices rose to near 4-week highs as the 60-day US-Iran Memorandum of Understanding expired this week without a permanent peace agreement. The Strait of Hormuz remains effectively closed, with Iran insisting that it will remain shut until Washington meets Tehran's demands, while the US naval blockade in the region remains in place. Meanwhile, US President Donald Trump has threatened tougher economic sanctions on Iran and its trading partners, raising concerns over tighter oil supplies in the coming weeks. During the week at the International Exchange, Brent crude October futures surged 6.6% to settle at $94.39 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures soared 6.9% to end at $87.06 per barrel. दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन। कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, जैसे हम मार्केट में वैल्यूएशन देखते हैं तो जो लार्ज कैप में बीएसई इंडेक्स के हिसाब से जो वैल्यूएशन होती है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 20-22 के आसपास रहता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 32-33 तक रहता है। तो क्या ये नॉर्मल है कि इनका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ही रहता है या फिर अभी ये ओवर वैल्यूएट जोन में ही उनको दिखाता है? नहीं, देखिए, दोनों बात आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन जब भी स्मॉल कैप और मिड कैप का आप देखेंगे थोड़ा प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा ज्यादा रहता है। इन वनस्पत जो बीएससी के आप इंडेक्स को देखेंगे तो इसको लेके मुझे नहीं लगता कोई बहुत चिंता करनी चाहिए आपको। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों में जब भी आप निवेश करें थोड़ा उनको फंडामेंटली स्टडी कर लें, उनके ऑर्डर बुक, उनका प्राइस अर्निंग रेशियो वगैरह ध्यान से देखें, उनकी जो मैनेजमेंट है, तो मुझे लगता है बस उस पर ज्यादा ध्यान दें, बाकी कोई मुझे नहीं लगता चिंता है। Major US stock market indices rose yesterday but ended the week in the red. The Dow Jones Industrial Average advanced 1% and the S&P 500 and Nasdaq Composite each gained 0.4%. However, for the week, the Nasdaq shed 2% and the S&P 500 slipped 1.4% and the Dow fell 0.9%. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, आपने सभी के जवाब दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची, राजेश, आप दोनों को भी धन्यवाद। Thank you, Siddharth, for being with us. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices declined for the second consecutive week. Sensex and Nifty slips around 0.5%. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate.
and global crude oil prices extend their rising streak this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.